Warm welcome and a big thanks to all of you for being with us today. Today, this talk will be on how to be a mindful Muslim. But before that, we should know the meaning of being mindful. So, see, mindfulness is a mental state of self awareness which is achieved by focusing on the present. Now, think of a straight line. The one end of it represents the state of unmindfulness, and the other represents the state of mindfulness, and in between that there are ways to get a control on ourselves. So when we are in the state of unmindfulness, we react to our thoughts, feeling, emotions, actions, desires in haphazard way, and we let them control us, we let our mind control us. But when we are in the state of mindfulness, we achieve control over our thoughts, emotions, and actions. So ultimately, a state of mindfulness teaches us how to overcome our habit of procrastination, to focus better in our prayers, to have a power of good concentration, to manage our time, to have discipline in our lives, and to improve our overall quality of life, both spiritually and materialistically. So it also helps us to reduce the stress, emotional reactivity, depression, anxiety, and ultimately it becomes more productive for ourselves to achieve our goals. Otherwise, we just keep huge aims, we think a lot, and we act less for their accomplishments. Islam gives us holistic approach for spiritual, mental, physical, and emotional well-being. As Allah says in Quran, remember that Allah knows what's within you, so be mindful of Him. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam advised us to worship Allah as if we are able to see Him. He said, worship Allah as if you are able to see Him. And if you are not able to see Him, then you should worship Him acknowledging that He watches you. And this is called what? Ihsan. So we should be in the state of knowing that the fact that Allah is always watching us. So this feeling will result into a greater attention and care for our thoughts, actions, emotions. And now is the time of the session we are keenly waiting for by keynote speaker Dr. Affan Hashmi. Let me introduce herself. She's a dentist by profession, a published author of children's book, a blogger, and a student of Deen for Life, and she is homeschooling mom by her choice, and a lot to say for her appreciation. She will be addressing us from Australia today. Ma'am, thanks a lot to you for being with us and giving us your precious time. May Allah reward you for this. Jazakallahu khair. Now over to you, ma'am. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Oh, Yes, your voice just started to cut off and I just lost it for a moment. So Bismillah Rahman Rahim. Should I start? yes, ma'am. Yes, ma'am. You can. Please. Okay. Assalamu alaikum everyone. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jazakallah khair for such a wonderful introduction. You explained mindfulness so well, and I feel as if I've nothing much left to add to it. But inshallah, I'll try my best. I think we have a lot of ground to cover, so we will get right into it, inshallah. I hope I'm able to do justice to it. So, is it okay if I switch between Urdu and English? Yeah, Yes. absolutely. Yeah, okay, Alhamdulillah. So, you already gave a very beautiful definition of what mindfulness already is. So I'll get straight to what's a mindful Muslim. So being mindful as a Muslim means being aware of Allah in our day-to-day actions and interactions. मतलब कि हम दिन में जो करते हैं करते कराते हैं लोगों से किस तरह बात करते हैं उस हर चीज में जो है अल्लाह को जो है वो अपने फोर फ्रंट में रखना मतलब कि इसको जो है हम एक मुसलमान के तौर पे माइंडफुल होना कहेंगे as well as being aware of our thoughts and feelings which can impact our actions. तो वो एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो अक्सर लोगों ने फ्रिजेस के ऊपर जो है मैग्नेट्स बना के लगाए होते हैं या आपको कोट्स अक्सर डायरीज के ऊपर लिखे बनेंगे कि बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स दे बिकम योर फीलिंग्स एंड बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स दे बिकम आवर एक्शंस. तो जो है
माइंडफुल होने का यही मतलब है कि यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ ऑल द थॉट्स दैट आर गोइंग इन योर माइंड एंड हैविंग कंट्रोल ओवर देम। तो हमने बात कर ली कि एज अ माइंडफुल मुस्लिम हमारा ये मकसद है कि बीइंग अवेयर ऑफ अल्लाह इन ऑल आवर अफेयर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो है हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई एम श्योर वी ऑल नो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी he has said in the Quran that I did not create the jinn and mankind except to worship me। और जब तक हम इस मकसद को नहीं समझेंगे एक मुसलमान होते हुए ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, तो हमें जो है ज़िंदगी में वो फुलफिलमेंट एज अ मुस्लिम नहीं मिल पाएगी। वी कैन अचीव ऑल दैट वी वांट टू अचीव, बट जब तक ये कोर पर्पस नहीं समझेंगे हम ज़िंदगी में, वी विल नॉट बी एबल टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। तो जो है ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ठीक है हमारा मकसद जो है बीइंग अ मुस्लिम जो है इट्स वर्शिपिंग अल्लाह, बट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, और अगर कुछ जो है मैरिड भी हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो many of us are not able to make the time for worship as much as we want। और इसकी वजह से जो है हम लोग जो है बहुत ही disappointed feel करते हैं अपने आप में, that we are not able to make as much as a time for worship as we want to। लेकिन अगर हम जो है अपनी हमारी जो intentions हैं या हमारी सोच है उसी को इस तरह रियलाइन कर लें कि हमारा हर मकसद ही वर्शिप बन जाए, तो हमारे बहुत से जो है मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसको और आगे जो है लेके चलते हैं। सो हाउ कैन वी लिव मोर माइंडफुली एज अ मुस्लिम? सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि वी हैव टू रियलाइज आवर पर्पस, हमारा जिंदगी में मकसद क्या है। और व्हेन वी रियलाइज आवर पर्पस वी हैव टू अलाइन आवर इंटेंशंस विद आवर पर्पस। तो उसके बाद वी हैव टू, जब हमने अपना पर्पस रियलाइज कर लिया, वी हैव टू कट बैक ऑन एवरीथिंग जो है हमारे पर्पस के साथ अलाइन नहीं करती। एंड रिमेंबर द सस्पेंडर ऑफ जॉयज। ये जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय द सस्पेंडर ऑफ जॉयज। तो यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं। सो एम्ब्रेस योर पर्पस। हम में से जो है बहुत से जो है ज़िंदगी में हमारे मुख्तलिफ रोल्स हैं, बेटी हैं, कोई माँ है, स्टूडेंट्स हैं, किसी अगर हम जो है कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, वी आर एम्प्लॉय, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वी आर बिजनेस वुमेन। लेकिन उसके अलावा भी जो है ज़िंदगी के बहुत से जो है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे जो है हमारे की रोल्स के अलावा भी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो है तो टू लिव अ fulfilled and mindful life, the key thing that we have to do in the first place is कि fully embrace the place you're in life। मतलब कि ये ना सोचें कि हम ये होते या अगर यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो we will get what we want। just जिस पॉइंट पे है ना आप जिंदगी में, उसको जो है पूरी तरह से embrace करें, और उसी पॉइंट पे जो है उसी पॉइंट में और उसी रोल में होते हुए जस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी इन दैट पॉइंट इन लाइफ। अगर आप उसी को जो है ठीक तरह से अचीव कर लें इस पॉइंट को, तो दैट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर अल्लाह। तो जो है इसको अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ कि व्हाट डू यू वांट, और उससे भी ज्यादा कि व्हाट यू नीड एट दिस मोमेंट टू बी व्हाट यू वांट टू बी। चाहे आप जो है पेरेंट हैं, बेटी हैं, बहन हैं, एम्प्लॉय हैं, और उस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो है एक अल्लाह की बंदी होते हुए what can you do to be the best version of yourself। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपने आप को कंपेयर ना करें। इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक अप टू सर्टेन कैरेक्टर्स and certain people and adopt those things in yourself as well to achieve what you want to be। लेकिन अपने आप को कंपेयर नहीं करना। यहाँ पर जो है मुझे वो एक कोट याद आता है, वो अक्सर आप लोगों की नजर से भी गुजरा होगा कि everyone you know blooms in their own time। so
keep making dua to Allah. अपने लिए जो है inshallah you know be and reach the point that you want to be. लेकिन compare नहीं करना अपने आप को. तो यहाँ से हम दूसरे point पे चलते हैं. Align your intentions to please Allah. तो जो है अक्सर जो है हमें से बहुत हैं, we are so swamped with our work and our different responsibilities कि जो है हम यही अपने आप को कहते रह जाते हैं कि अच्छा अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं थोड़ी सी दुआ कर लूँ, थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं थोड़े से नफल ज़्यादा पढ़ लूँ. हमें जो है वो एक्स्ट्रा इबादत करने का टाइम नहीं मिलता. लेकिन अगर हम जो अभी काम कर रहे हैं उसमें ही हम अपनी इंटेंशन ऐसी बना लें कि वो जो है हमारी इंटेंशन ही अल्लाह की खुशनुदी का बायस बन जाए, क्योंकि a large part of our deen is based on intentions. तो अगर आपने अपनी इंटेंशन ही ठीक कर दी तो जो अभी आप काम कर रहे हैं वो जो है आपके लिए एक इबादत ही बन जाएंगी. अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी जो है एग्जाम्स की तैयारी, सॉरी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? No, no, ma'am. Please go ahead. हाँ जी. Yeah, it's okay. तो अच्छा वो असल में आवाज कट रही थी. तो अच्छा अगर आप अपने इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो तब जो है आप अपने जो है अपनी कामयाबी के लिए दुआ करें. आपकी कामयाबी हो जाती है तो बजाय के खाली जो है मतलब कि आप you become proud of your own efforts, आप जो है उसका पूरा क्रेडिट अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दें. बेशक ठीक है आपकी मेहनत ही, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहते तो शायद आपको जो है वो पोजीशन ना मिलती. उसी तरह अगर आपके जो है बच्चे या छोटे बहन भाई जो है कोई गंद कर दे और आपको साफ करना पड़ जाता है, तो मतलब अपनी इंटेंशन को मतलब इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि जाहिर बात आप कोई और काम कर रहे थे और एकदम से जो है आपको ये काम साफ करना पड़ जाता है. तो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट शिफ्ट योर इंटेंशन टू ओके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीज आर योर यू नो योर लिटिल सर्वेंट्स इन ट्रेनिंग, और मैं आप जो है उनसे प्यार से और सब्र से और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, तो जो है उसमें भी आपके लिए अल्लाह के लिए अल्लाह की सुब्हानहू व तआला की तरफ से रिवॉर्ड्स हैं. इसी तरह आप कोई और काम कर रहे थे लेकिन आपकी अम्मी कोई और काम आपको करने को दे देती हैं, तो आप इस इंटेंशन से जो है वो काम कीजिए कि आप अपनी माँ की जो है फरमाबरदारी कर रही हैं, उनका काम कर रही हैं, उनके काम आसान कर रही हैं, अपनी जो है फैमिली के लिए खाना पका रही हैं, तो यू आर नरिशिंग योर फैमिली. तो जो है जब आपकी इंटेंशन बदल जाएगी तो वो जो काम आपको बर्डन लग रहा था वो ही आपके लिए बहुत ढेर सारे अजर का जो है वजह बन जाएगी. इसी तरह लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो है हम सारे अपने अंदर जो है अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा चेंज लाने के लिए भी वी नीड टू लेट गो ऑफ एक्सेस इन आवर लाइव्स. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लीजिए कि आप अपने घर में जो है नया फर्नीचर लाना चाह रही हैं, पुराना फर्नीचर जो है खराब हो गया है, लेकिन तब तक आप जो है वो पुराने फर्नीचर को नहीं निकालेंगी तो नए फर्नीचर की कैसी जो है जगह बनाएंगी. इसी तरह टू ब्रिंग good change in ourselves, we have to let go of our bad habits which are not or our previous habits which are not serving us anymore. तो तो ये करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि we have to stand back और हम अपनी लाइफ को जो है असेस करें कि हमारी जिंदगी में ऐसी क्या चीजें हैं which we need to change, which we need to fix. तो इसमें जो है सबसे पहली बात ये कि we have to get rid of time wasters. इनको जो है मैं I like to you know ये मैंने कहीं पढ़ा था analogy of leaking tap. जिस तरह जो है एक पानी से भी जो है वो कतरा कतरा जो है पानी जो लीक करता है, और अगर आप उसको कलेक्ट करना शुरू करें तो कितनी देर, थोड़ी सी देर में जो है वो आपकी बाल्टी भर जाए. तो बिल्कुल जो है इसी तरह हम जो छोटी छोटी चीजों में पूरे दिन में जो है वक्त अपना लगाते हैं तो दे आर जस्ट लाइक leaking taps. We have to assess हमारे ये time wasters कहाँ हैं and we have to get rid of them. उसके अलावा we need to set boundaries within our relationships, with our friendships, the people we talk to, what kind of people we allow in our lives, what kind of talk they do. इन हर तरह इन चीज़ों में जो है अपनी boundaries हमें set करनी पड़ेंगी.
क्योंकि इसकी आम सी मिसाल ये है कि कोई आपको कुछ कह देता है और आप जो है उसी बात को लेके जो है पूरा दिन उस बात पे सोचते रहते हैं, और वो जो है वही सोच जो है आपके ऊपर इतना बर्डन बन जाती है कि वो आपकी सारी जो है एनर्जी ड्रेन कर देती है। तो जो है वी हैव टू सेट बाउंड्रीज दैट अव्वल तो हम किसी को इस तरह की कोई बात अपने आप से कह ना दें, या फिर अगर कोई कह भी दे रहे तो हम उस सोच को अपने ऊपर जो है हावी ना होने दें। उसके अलावा हमें जो है अपनी ज़िंदगी में से बहुत सी चीज़ों को जो है डीक्लटर करने की ज़रूरत है। क्लटर में मेंटली भी हमें अपनी जो है एक्स्ट्रा सोचों को जो है वी हैव टू गेट रेड ऑफ देम। वी हैव टू हमारे जो है इर्द गिर्द फिजिकली भी जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वी हैव जो विच आर नॉट सर्विंग अस एनी मोर, वी हैव टू गेट रेड ऑफ देम। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डीक्लटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्स्ट्रा ई बुक्स हमारे उसमें पड़ी हुई हैं, हमारे फ़ोन्स में, या एक्स्ट्रा एप्स हैं, या ऐसे लोगों को हम फॉलो करते हैं which are not serving us anymore, or which just add to those unpleasant feelings within ourselves. We had to get rid of them. फिर मैंने वहाँ पे बात की थी शुरू में, रिमेंबर ऑफन द सस्पेंडर ऑफ जॉयस। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस है। अगर हम जो है अपनी मौत को जो है जितना याद करेंगे हमें उतना ही वी विल रिमेंबर टू प्रायोरिटाइज आवर लाइव्स, थिंग्स इन आवर लाइव्स, क्योंकि we all have counted number of days on this earth. हम सबको एक दिन जाना है। अगर हमें ये बता दिया जाए कि हमारे जो है कितना अरसा रह गया जीने को, तो definitely we all will definitely live very different lives. So this way of thinking naturally helps us to get rid of all those extra things in our lives and live our lives in more disciplined ways. So a little perspective. मैं यहाँ पे जो है सोशल मीडिया की एग्जांपल इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज दैट्स अ ह्यूज पार्ट इन आवर लाइव्स नाउ, स्पेशली यूथ की जिंदगी में. So if we spend just 1 hour on social media a day, it adds up to 15 solid 24-hour days a year. मतलब कि 15 दिन बनते हैं एक साल के, जो कि हम जो है सोशल मीडिया पे गुजारते हैं. और ये सवाल हमें जो है अपने आप को पूछने की ज़रूरत है. सबसे पहले मुझे अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जो है ये जो हम अपना टाइम सोशल मीडिया में गुजारते हैं, कि इससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है? So that's something to think about. So how can we become more aware? Awareness is the ability to be conscious of events, objects, thoughts, and emotions that surround you and that which are going within us. When we start paying attention to what's happening around us, we begin to realize how much there is to be grateful for. मतलब कि आप जो है उन्हीं ममालिक की जो है वो मिसाल ले लीजिए जहाँ पे जो है सीरिया है, यमन है, वहाँ पे जो है आपको ये नहीं पता कि आप सुबह सो के उठेंगे तो आप जिंदा भी होंगे कि नहीं, आपके सर के ऊपर छत भी होगी कि नहीं. मतलब आप इन चीज़ों को ही देख लें तो आपको जो है यू रियलाइज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है कितना ज़्यादा ब्लेस किया है. The Prophet, peace be upon him, said there are 2 blessings which many people do not make the most of: good health and free time. This is a hadith mentioned in Al-Bukhari. This is a very very powerful image. अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो they are walking peacefully amongst nature. एक तरफ जो है वो जो लड़की है वो सीनरी को ही देख के एंजॉय करी एंड शी इज लाइक फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट, जबकि जो दूसरा बंदा है उसके दिमाग में जो है ही ऑल दीज थिंग्स आर रनिंग इन हिज माइंड कि ये भी करना है, वो भी करना है, यूट्यूब देखना है, ट्विटर देखना है, टाइम नहीं है, होमवर्क करना है, एवरीथिंग. सो वी हैव टू decide what do we want to be, mindful or mindful with a single L. And for this, obviously, when we let go of those extra things in our life, we will be able to make time for these mindful movements with a single L, inshallah. So point two, अब ये चीज़ें जो है सोचने की बात है. When was the last time you paid attention to the fact that you can go up and down the stairs without feeling pain in your knees?
Do you appreciate the time you can sit in silence to read a book? For those of you who are unmarried, who still haven't started a family, I really, really want you to appreciate the blessing you have of right now. You know, just sitting down silently with a cup of coffee or and enjoying a book. This is a huge blessing. इंशाल्लाह जब आप में से जिनकी फैमिलीज नहीं है या जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ऐसे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह you will look back on this time when you could actually do this. So just savor that moment. One of the main reasons we do not take advantage of the blessings of health and free time is because we do not pay attention to them until we no longer have them. So savor the moment of present. So this is my favorite hadith. I mean, this hadith should be written in gold and should be hung in every home, should be taught to every child and every youth. O Muslims, take advantage of 5 before 5. Take advantage of youth before old age. Take advantage of health before sickness. Take advantage of wealth before poverty. Take advantage of free time before preoccupation. The point that I was just mentioning, for those of you who are single, just take advantage of the time, learning much as you can, just enjoying the moment, and take advantage of life before death. Making the most of present moment, Ibn al-Qayyim refers to present as the line between two times. He states your attention must be directed to your life in present time between two times. If you waste it, then you have wasted the opportunity to be of the fortunate and saved ones. If you look after it, having rectified the two times, what is before and after it, then you will be successful and achieve rest, delight, and everlasting. वो कहते हैं ना कि do something in your present that your future self will be grateful for. Now, what happens is most of us tend to remain depressed and anxious over the events that happened to us in the past and expect worse to happen in the future. In doing so, we squander a precious gift provided by Allah and also underestimate Him. Prophet, peace be upon him, related to us, Allah says, "I'm as my servant thinks of me." In another narration, the Prophet said, "None of you should ever die except while assuming the best about Allah." So what happens is when we constantly worry about the future, we underestimate the mercy and forgiveness of Allah. In such instances, we forget that the one who created us is indeed all powerful and able to do all things. And in fact, he is the one who is in control of all situations. So there was a study which was conducted by a psychologist from Harvard University. In this study, he found out that people spent around 46.9% of their waking hours thinking about something other than they are doing, which results in feelings of unhappiness. So you can go and Google this study. It's present online, and the study is called "A Wandering Mind is an Unhappy Mind." So over there, here, this graph, this shows that when our mind is focused and present in the moment, we tend to be happy. So when we are constantly, in another scenario, when we are constantly allowing our mind to wander, we tend to get anxious and we tend to be unhappy. So what can we do? Because many of us tend to be anxious because of the things that happened in the past. So what we can do is, if we did some sin, we can repent for the sin and move forward. And to make up for the sin, we can do as many good deeds as possible. So if we are not happy with what's going on in our present, we can make the efforts to improve our things rather than expecting things to change for themselves, or waiting for someone to come and change our circumstances. We have to take responsibility of our actions instead of putting the blame on others, because in this instance we need to remember the instance of Iblis as well, that he didn't repent and he blamed he just didn't repent, and he blamed Adam alayhi salam, and he was damned for life. So
we should so we need to remember that Allah subhanahu wa ta'ala made us ashraful makhluqat, and we have he has given this ability to take responsibility of our actions and be proactive and do something about it. So we need to realize that there is no benefit in worrying about the past because it just cannot be changed. And we need to savor the beauty of Allah's creation around us. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala tells us constantly in the Quran as well, to just look around us and how He created everything. And just looking at His creation allows us to be in awe, and which allows us to be in a state of gratitude to Him. And lastly, we should improve our time management skills. So how can we discipline ourselves? A discipline for Muslim is mainly controlling the nafs. So we have to control our thoughts which come to our mind. We have to control our reaction to whatever happens in our lives, and obviously we have to control our actions as well. So why? So many of us, I'm sure that many of you who are students, you must be like very ambitious about what you want to attain in your life. So for that, at this point in your life, it's very important that you learn to discipline yourself, because if you don't do it at this point in life, it will become more difficult later when you will have more added responsibilities, more relationships that you will have to tend to. So it's more important that you start inculcating those habits in yourself now. So I feel as Muslim, we have this very beautiful tool that we have in our life to discipline ourselves, and that's the 5 daily salah. When for I mean, from my life, I can say that whenever I have arranged my life around the salah, I feel there is more blessing in my life. Instead of when I जब जो है मैं नमाज को जो है लास्ट प्रायोरिटी देती हूँ, तो मेरी जिंदगी से जो है सुकून भी खत्म शुरू हो जाता है और बरकत भी खत्म होना शुरू हो जाती है. सो वी नीड टू अरेंज आवर लाइफ अराउंड द प्रेयर्स. और आजकल वैसे भी जो नए नए coach or self development में जो है it's a very big thing to wake up early in the morning and start our work early in the day. और ये चीज़ तो हमारे दीन ने ही हमें जो है कई साल पहले दे दी थी. कि कहा जाता है ना कि सुबह फजर के वक्त जो है फजर के टाइम जो है, आप लोग शायद बेहतर जानती हो कि उस टाइम जो है जागे रहना जो है बरकत का बायस है, क्योंकि जो है उस वक्त रिस्क बांटा जा रहा होता है. तो और वैसे भी उस वक्त कहा जाता है कि you tend to be at your productive self. So we need making use of that early hour time. उसके अलावा what you can do to practice discipline is try delaying gratification to gain control, gain better self control. अब इसमें ये कि आपका कोई चीज़ करने को दिल कर रहा है, तो मतलब कि instead of like going for it right away, कि KFC का बर्गर खाने को जी कर रहा है, तो फौरन ऑर्डर करने के बजाय delay it for a bit or go for something healthier. So that way you will be able to get more self control over yourself. Uske alawa, a very important thing for us as girls, as women, is that we need to start practicing positive self-talk. We are getting all these different messages from social media and from TV. और अगर social media और TV नहीं भी है, तो फिर आपको जो है कोई ना कोई आंटी या कोई friend कह दे कि do this, do that to look better or look more pretty. तो जो है हम ना चाहते हुए भी जो है उस नेगेटिव सेल्फ टॉक के जो है साइकिल में चले जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हम जो अपने जहन के अंदर, जो अपने दिमाग के अंदर अपने आप से बातें करते हैं, दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव. आप जब जो है कुछ करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, अपने आप को जो है encourage करना शुरू करें कि at least you need to try, you can do this, if you fail, so what, you can try again, it's not the end of the life if you fail. ठीक है. उसके अलावा जो है it's very important that we exercise, not because to remain slim
or to lose weight, but also because exercise करने से it's proven that it causes the release of hormones which make you feel good and more self-confident. तो अगर आप रोज नहीं भी कर सकते, at least try to go for 3 times a week, and you don't have to start with an hour or half an hour. Just 5 to 10 minutes can do the job. बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने के बजाय मेक स्मॉल अचीवेबल गोल्स, ताकि जो है once you achieve them you feel like more self confident. क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं and we fail at them, so we stop trying. अपना जो है अपना जो है वो डे जो है प्लान किया करें कि आप जो है क्या क्या करना चाहते हैं, अपनी जो है वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, अवॉइड टेम्पटेशंस, और जब टेम्पटेशंस आपके सामने आ जाए तो ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दोज टेम्पटेशंस. उसके अलावा you can do journaling about whatever goes in your mind. You can write your ideas down, what you want to achieve in your life. And another very important thing that we need to work on is deep breathing. क्योंकि आजकल जो हमारा social media और media का ज़माना है, we always tend to be in that fight and flight mode में. तो and most of our times हमारी जो है body बहुत ज़्यादा tense, और जो है हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत शैलो होती है. तो टेक सम टाइम आउट फ्रॉम योर डे, बेशक नमाज के बाद या सोने से पहले थोड़ा सा जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया करें. यू कैन गो ऑन द नेट, और जो है डीप ब्रीदिंग के आपको बहुत सी टेक्निक्स जो है ऑनलाइन मिल जाएंगी इंशाल्लाह. So what are some takeaway points that I want all of us to take from this presentation is that being aware of Allah leads to increased intentionality. हमारे दीन में है कि जो है हमारा जो अजर का दारोमदार हमारी जो है intentions पे है. तो हम जो है when we are always aware of Allah in all the things that we do in our life, तो जो है हम हर काम जो है इसी इंटेंशन से करेंगे कि हम जो भी काम करें वो अल्लाह सुब्हान व तआला उससे खुश हो जाए, और वो जो है फिर वही काम हमारा जो है एक तरह से अल्लाह की इबादत बन जाएगा. Everything done with the right intention can become a source of pleasure with Allah. Being conscious of the fact that we have counted number of days on this earth makes us mindful of our time. कहा जाता है कि time is money, so inshallah we can make the most of our time on this earth. And one of the questions when akhirat mein, one of the questions is going to be about our time, how we spent our time. To make a positive change, we have to declutter our lives. Present time is a gift of Allah, and we have to be grateful about it and try to be as present in the moment as possible. And discipline allows us to explore our potential and achieve our goals. अगर हम अपनी ज़िंदगी में disciplined होंगे तो obviously we will be able to get some time जहाँ पे जो है हम बैठ के सोच सकें अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में और उन एबिलिटीज़ के बारे में जो उन्होंने हमें दी हैं. और इसी तरह जो है हमें मौका मिलेगा कि जो है हम उन एबिलिटीज़ को जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर हम मतलब कि अपने माइंड को जब डीक्लटर करेंगे तो वी विल बी एबल टू अब तो माशाल्लाह से इफ यू गो ऑनलाइन देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन बिल्ड अप योर स्किल्स. तो दैट वे वी विल बी एबल टू polish our skills and inshallah use them to the best of our capabilities for the benefit of our ummah and ourselves and our families as well. So inshallah I hope this was of benefit to you. इसमें जो भी अच्छी बातें थी जो भी खैर की बातें थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से थी, और जो भी गलतियां थी वो मेरी तरफ से थी. Please forgive for any mistakes, and I hope you were able to take some good away from this presentation. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khair, Appi. Mashallah, it was very, very informative. And now we will be having interactive session for question answers. So if anyone of you have any question, please hand raise, or you can type your questions in chat box.
Api, this presentation was very beneficial. MashaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Wa iyyaki. Any question? Actually, Api, some sisters were asking personally, can we get the PDF of this presentation? Yes, sure, inshallah. If Nikhat, you could send me your email address, I will email it to you, and then you can inshallah share with other sisters. Yeah, okay. Jazakallahu khair. जी जी मैं इंशाल्लाह दे दूंगी. Okay, जब तक wonderful. क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं बीच में थोड़ा बता भी दूं. सिस्टर अफान जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं, बट शी मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज बीन लिविंग देयर फॉर इयर्स नाउ. तो हम लोग जो है इंस्टाग्राम पे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और मैं काफी इनके पोस्ट्स वगैरह पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे. तो इस संडे के टॉक के लिए हम सोच रहे थे कि किसको इनवाइट करें, और मेरे जहन में एक चीज आई कि मैं इनको एक बार ट्राई करके देखूं. और हमारी वैसे कोई बहुत इनफॉर्मल कोई बातचीत नहीं हुई, बस मतलब पोस्ट पे कभी कमेंट कर दिया या कभी उसी से, बस बहुत स्ट्रिक्टली मतलब एक तरीके से फॉर्मल बातचीत हुई. तो मैं जब मैसेज कर रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि व्हाई वुड शी से यस, मतलब वो मुझे जानती नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्यों हाँ बोलेंगी. फिर मैं सोचा कि नहीं, एक बार करके तो देखते हैं, अगर हाँ बोल देंगे तो फायदा है, या ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगी, ना बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, करके तो देखते हैं. एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने उन्हें एक बार बस मैसेज किया एंड शी अग्रीड. आई वाज सो ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे एक तो इनके पोस्ट बड़े अच्छे लगते हैं. इंस्टाग्राम पे आप सभी ने इनका पेज भी चेकआउट कर सकते हैं, द ऑड मुस्लिमा के नाम से है इनका पेज. तो मुझे सच में वाकई बड़ी खुशी हुई, और सच में मैं आपका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकती कि आप एक बार में ही जो है राजी भी हो गई, हम लोगों को अपना वक्त दिया, फिर इतने कीमती चीजों से आपने हमें बताया भी, इतने इंसाइटफुल चीजें. तो बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपके वक्त में और बरकत दे और आपके इल्म में इजाफा करे. आमीन, जज़ाकल्लाह खैर. नहीं, मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि आपने जो है इस मौके पे मेरे लिए सोचा, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक. मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, माइंडफुलनेस आजकल के ज़माने में हम सारे इससे स्ट्रगल करते हैं. तो जस्ट अ डिस्क्लेमर कि जस्ट बिकॉज़ आई गेव दिस प्रेजेंटेशन, मतलब आई एम एट टॉप ऑफ द गेम, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं जब प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिनके बारे में मुझे भी जो है अपनी ज़िंदगी में रिव्यू करने का मौका मिला. और जहाँ तक जो है निखत की बात है, तो हाँ, हम कुछ अरसे से वाक़ई जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और एक दूसरे के पोस्ट को वाक़ई एंजॉय करते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है मुझे बुलाया यहाँ पे बहनों से बात करने के लिए, और आप लोगों से इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने जो है आप लोग भी अपने ख़्यालात इस बारे में शेयर करें, और एक अच्छी जो है वो डिस्कशन यहाँ पे हो सके. Alhamdulillah, and Allah is the best of the planners. जैसा अप्पी ने बताया, निकत अप्पी ने, कि कैसे हमें ये मौका मिला आपके साथ ये सेशन रखने का. अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स. अब एक एक क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन आया है. जी, टिप्स फॉर इस्लामिक अपब्रिंगिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन. अच्छा, मैं सबसे बड़ा अहम चीज़ जो इसमें वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी उस तरह से टिप्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो बेस्ट टिप वो ये है कि बच्चे जो हैं वो बोलने से ज़्यादा आपको देखने से सीखते हैं. तो अगर जो है आप खुद से जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आप अपने बच्चों में देखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जो है बहुत सी चीज़ें पिक करेंगे और वो ही बनेंगे जैसा आप उनको देखना चाहते हैं. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते रहें, और जो है अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करने की कोशिश करते रहें. घर में जो है बच्चों के सामने अपनी नमाज के औकात का और जो है कुरान मजीद वगैरह पढ़ने का जो है एहतमाम करते रहें. बच्चों को जो है कहानियाँ सुनाएँ, ख़ास तौर पे जो हमारे सहाबा, हमारे अंबिया कराम की उनमें बहुत सारे जो है लेसन्स हैं उनके लिए. तो बच्चे इन चीज़ों से बहुत सीखते हैं. तो इंशाल्लाह ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करें, तो इंशाल्लाह. Okay, Jazakallahu khair. Any other question? Let me just check.
How? There is one more question. Yeah, hello. हम्म, जी जी हाँ अपी जी, हाँ आप जी. जी. What should we do when one thing keeps on going in our mind? Like if someone scolds us, wait. Oh, yeah. What if someone scolds us? Then, where is the question? That thing only goes on in one mind. I'll be grateful. Okay, this is the only question. When we think, when one thing keeps on going in our mind, like if someone calls us, so what should we do for that? Uh, I think सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपको जिस बात पे डाँट पड़ी है कि वो वाक़ई आपकी गलती की वज़ह से पड़ी है या नहीं, ठीक है? अम, और दूसरा ये कि अगर किसी से कोई ज़्यादती भी हो गई है, तो व्हेन द पर्सन कूल्स डाउन यू कैन एक्सप्लेन टू देम एंड क्लैरिफाई योर पोज़ीशन कि अच्छा जो है मतलब कि ये चीज़ नहीं थी, ऐसा था, आपको गलतफ़हमी हुई है। और अगर उन किसी बंदे ने वैसे ही आपके ऊपर गुस्सा निकाला है तो अम, जो है ट्राई टू फॉरगिव देम इन द सेंस कि जो है अल्लाह की मतलब इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि जिस बंदे ने आपको डांटा है वो है कौन, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स हैं और कभी-कभी होता है कि दे आर सो फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड विद देयर ओन यू नो लाइफ सिचुएशन. हमारे पेरेंट्स के भी जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड दे आल्सो हैव देयर ओन many issues going on. उनका अपना भी ट्रॉमा है which they need to heal from. और कभी-कभी जो है हम उनके लिए एक easy target बन जाते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए. तो ट्राई टू फॉरगिव देम और अल्लाह से उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह भी उनको माफ़ करे और कोशिश करें कि दोबारा से ऐसा जो है मौका ना आए. अल्लाह से दुआ करें, सबसे बड़ी बात अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आई हैव लेफ्ट देयर केस ऑन यू. और यहाँ पे हाँ बाउंड्रीज डिपेंडिंग अपॉन हू द पर्सन इज इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक सम बाउंड्रीज कि सो दैट you don't allow them to be toxic in this way anymore. तो यहाँ पे ये मतलब कि ये मैंने एक जनरल सा जवाब देने की कोशिश की है just from you know my understanding. तो there are several ways of dealing with it. तो inshallah I hope that you know I was able to answer in a Okay. satisfactory way. So I hope you find some comfort in it, inshallah. One more question is there: how to not beat ourselves over some failures in the past? Um, देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है? और दैट्स हाउ वी लर्न. अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कैसे? और अगर आपसे जो है कोई मतलब यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ ओवर द फैक्ट कि ओके ठीक है मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ की थी आई डिड इट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम, फ्रॉम माय नॉलेज एट दैट टाइम. नाउ आई एम अ बेटर प्लेस. मैंने अपनी गलती से भी सीख लिया और एंड आई हैव मूव्ड ऑन. अगर कोई जो है आपसे खुदा न खासा कोई गुनाह हो गया अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे. और वही जो मैंने बात की प्रेजेंटेशन में कि अल्लाह की जो है वो मर्सी पे अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन जो है आस्क फॉर हीलिंग. अल्लाह ताला से भी जो है दुआ कीजिए कि वो आपके दिल में सुकून डालें इंशाल्लाह. तो और कोशिश कीजिए कि वो जो गलती हुई थी उससे आपने जो है लेसन सीखे और दोबारा से इंशाल्लाह वो गलती करने की ना कोशिश करें इंशाल्लाह. Inshallah. How can we tackle demotivation or unproductive attitude? Oh, this is something we all struggle with, don't we? Um, इसका जो है सबसे ये है कि आप जो है अपने लिए मेरे ख्याल से विजन बोर्ड बनाएं कि व्हाट डू यू वांट टू achieve in your life and always keep that your goals at the forefront. मैंने जो अपने लिए जो है रिसेंटली अपने लिए जो टेक्निक डिवाइस की है वो ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ ही जो है आई ट्राई टू यू नो स्पीक सम positive affirmations to myself and there are some things that I
टेल टू माई सेल्फ विच आई एम ग्रेटफुल फॉर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने जो है आपके जो रोज़ के सुबह शाम के अस्कार हैं उनका ख़ास एहतमाम कीजिए, क्योंकि ये भी जो है एक आपके लिए शील्ड है। और अक्सर ऐसी बहुत सी बातें हैं ये जो है हमारे लिए हमारे ज़हन में और हमारे दिल में जो है शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं। तो इन दुआओं का ख़ास एहतमाम कीजिए और कोशिश करें कि ज़िंदगी में वो काम कीजिए जो है व्हिच ब्रिंग यू हैप्पीनेस। इसका ये मतलब नहीं है कि केएफसी खाने से खुशी होती है तो केएफसी भरते रहें पेट में। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको आप खुशी मिले और जिनसे फ़ायदा भी हो आपको, जैसे जर्नलिंग करें। तो अगर आपको जो है किसी चीज़ से जो है यू आर फीलिंग सैड, ट्राई टू राइट इट डाउन एंड मेक सेंस ऑफ इट कि अच्छा वो जो सैडनेस की फीलिंग है वो कहाँ से आ रही है और वो जो उसकी रूट कॉज़ है उसको जो है ख़त्म कीजिए ताकि वो फीलिंग्स इंशाल्लाह जो है दोबारा से ना आए। एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू डू अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो है शैतान हमारे ऊपर हर वक़्त इतना हावी रहता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस दैट वी कैन गेट डिट्रैक्ट। तो इंशाल्लाह ये कीजिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, वर्जिश कीजिए इंशाल्लाह और अपने आप को बहुत प्यार से रखिए, बिल्कुल फूलों की तरह इंशाल्लाह। Inshallah, may Allah make it easy for us. Two more questions are there. One is, there are times when negative thoughts take over our mind, no matter how much you try to brush them away. So, how do we get over it? अगर आपने मेरा ब्लॉग फॉलो किया हो इंस्टाग्राम पे भी तो you must be aware of the fact that I have been a patient of anxiety and depression for a long time. और ये ऐसा सिलसिला तब होता था कि अच्छा एक नेगेटिव सोच ज़हन में आई है, उसके ऊपर एक और नेगेटिव सोच, एक और नेगेटिव सोच, एक वो जो है बिल्कुल एक कुआँ सा जिसमें आप गिरते चले जाते हो नेगेटिव थॉट्स का। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट to take someone in confidence and tell them about your situation, someone who would just listen to you. मतलब कोई सुन भी ले आपकी बात तो जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और मतलब कि आई डोंट नो, मतलब कि मैं उस सिचुएशन से निकल आई हूँ और अब आई एम एट अ बेटर प्लेस इन माय लाइफ। तो मुझे आई डोंट नो कि मैं आपको जो है बहुत सही से मशवरा दे सकूंगी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर लाइफ। लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी कि जो अल्लाह ताला से मदद मांगिए। आप जो है किसी से भी जो है बात भी कर लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा जो है कोई भी आपके दिल का हाल बेहतर नहीं जान सकता। सजदों में गिर के गड़गड़ाइए, रोइए, इंशाल्लाह वही आपको जो है सिचुएशन से निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। और टेल गुड थिंग्स टू योरसेल्फ एज वेल। कहते हैं कि हम लोग लोगों से बातें करते हैं लेकिन ज़िंदगी में अपना जो है एक दिन में जो है हम अपना मेजर टाइम अपने सर के अंदर गुजारते हैं। द थिंग्स वी थिंक इन आवर हेड, द थिंग्स वी टेल टू आवरसेल्फ। तो जो है अपने आप को जो है अच्छी बातें कहने की आदत डालिए। बेशक जो है ये चीज़ें अपने सामने एक कार्ड पे लिख के रख लीजिए कि ओके यू आर ब्यूटीफुल। इफ यू थिंक आपको जो है अपनी लुक्स के बारे में कॉम्प्लेक्स है तो अपने आप को बताइए यू आर ब्यूटीफुल। अगर आप, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको बनाया है, हाउ कैन यू नॉट बी। अपने आप को जो है अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके अपना हौसला बढ़ाइए। तो इंशाल्लाह आई होप सो you will start to feel better inshallah. I mean, you mentioned that those who are single now have a lot of time to do a lot of stuff. I want to ask, should we delay marriage so that we can have more time to pursue career? There is a lot of confusion in this regard. How am I supposed to decide? Oh, yes. That's a huge question. That's a huge question. I don't know if I'll be able to do justice to it. देखो जिस तरह मैंने बात की कि एक मुस्लिमा और एक के लिए जो है सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि वो जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो है वो बंदी है। उसने जो है अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुज़ारनी है। तो जो है ये बात ज़हन में रखते हुए और फिर आजकल जो हमारी सोसाइटी का हाल है, इट्स फुल ऑफ फितना।
So if you can find a good brother who can, you know, help you grow in faith and who can help you grow in your career, my suggestion as a big sister and as a good and sincere friend would be that never delay marriage for anything. क्योंकि मतलब आपको मेरा जो है वो मशवरा बहुत आंटी टाइप लगेगा, लेकिन अगर जो है, अगर आप जो अपना करियर भी जो है इस मकसद से जो है दोनों चीजें देखो साथ साथ चल सकती हैं, सेल्फ डेवलपमेंट और जो है करियर वगैरह, और अल्लाह ताला की इबादत भी साथ साथ चल सकती है। लेकिन जो है करियर की वजह से अपना शादी को डिले करना, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई विल सजेस्ट, नॉट डेफिनेटली नॉट। क्योंकि ये तो हमारे आई गेस हमारे नबी का भी हुक्म है कि अगर आपको जो है वो कोई ऐसा ब्रदर मिलता है कि जिसका जो है हु इज गुड इन हिज फेथ, यू शुड नॉट रिजेक्ट द प्रपोजल। और बाकी अच्छी चीजें तो जिंदगी में साथ साथ वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। Nice answer. And marriage is also a part of our deen, of our life. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay. One more question is there. Mm, what, according to you, is the primarily role of Muslim women? The primary role of Muslim women, प्राइमरी रोल तो हमेशा उसका वही रहेगा, अल्लाह की इबादत। और अल्लाह की इबादत फिर जो है जब अल्लाह की इबादत ठीक से करती रहेगी तो, और अल्लाह को सही से जानेगी, दीन के मुताबिक जो है अपने रूल्स को समझेगी, तो एवरीथिंग बिकम्स वर्शिप। सो प्राइमरी रोल is the worship of Allah, whether she is a daughter, whether she is pursuing a career. हमेशा आपके जो है इंटेंशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही रहनी चाहिए। इट्स the primary role of anyone on this earth is that. Every human is that. Yes. Yes, indeed. How to stop overthinking over every little thing? We often overthink about the things or thoughts which are totally nonsensical, but when we are overthinking about it, it seems everything to us, and later on, when we realize what we were overthinking about it seems nothing, not really something we should have been pondering about. How shall we get over it? जब भी ऐसी कोई सोच जो है आपके जहन में आना शुरू है, which you feel that it's not serving you in any way, आप जो है we need to learn to divert our thinking. कोई जिक्र शुरू कर दें या फिर कोई ऐसा काम शुरू कर दें जिससे जो है आपकी सोच वहाँ पे डाइवर्ट हो जाए। आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल स्ट्रगल विद कि शैतान तो चाहता ही यही है कि हम जो है उल्टी सीधी छोटी मोटी सोचों में जो है हमारा दिमाग अटका रहे, ताकि जो है हम ना जो है बेहतर इंसान बन सकें, ना अपनी फैमिली को सही से सर्व कर सकें, ना हम जो है एक बेहतर इंसान बन सकें। जाहिर बात है जब जहन उल्टी सीधी फजूल की बातों में अटका रहेगा तो हम बाकी चीज़ों पे कैसे जो है ध्यान देंगे। तो यहाँ पे वही बात फिर ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो थोड़ा-सा प्लान करें, थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ करें, ताकि जो है हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जिन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस। ज़िक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, हर वक़्त अपनी ज़बान पे कोई ना कोई ज़िक्र रखें। और अपने आप को ये चीज़ याद दिलाने के लिए बेशक अगर आपको कार्ड्स पे लिख के भी अपनी दीवारों पे चिपकाना पड़ता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसको अपने कमरे में इर्द-गिर्द लिख के चिपकाएँ, ताकि जो है आप हर वक़्त ज़िक्र में मशगूल रह सकें इंशाअल्लाह। Inshallah, indeed, remembrance of Allah helps in cleansing the hearts. डेफिनिटली। Okay, so it was our last question. Okay, Jazakallahu khair, sister. Okay, one more question we can take. Most of your time. Okay, last question. Okay, ma'am. Abhi, हाँ. जी। If most of your time goes with studying, it gets difficult to intend to seek Allah's pleasure through it always. Any suggestion, please? देखो मैंने जो ज़िंदगी में बात सीखी है ना कि जब जो है आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में बरकत खुद ही पड़ जाती है।
तो ये जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे बात की थी, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सारी ज़िंदगी दे, कि जब जो है आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी पढ़ाई को मत, क्योंकि मैं भी जो हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी थी कि पढ़ाई में लग के जो है नमाज़ों की परवाह नहीं की, और जो है कुरान मजीद तो बिल्कुल भी भूल ही जाए ना आप। लेकिन जब मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम डिसिप्लिन होना चाहती हो तो अपनी नमाज़ों की तरफ तवज्जो देना शुरू करो, बाकी सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद जो है अपनी जगहों पे जो है आके फिक्स हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप जो है अपनी नमाज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें इंशाल्लाह। अगर आपसे बहुत ज़्यादा काम कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता तो दिन का एक सफ़ा रख लीजिए, एक सफ़ा भी नहीं तो कुछ आयात रख लीजिए। इंशाल्लाह आप थोड़े से भी शुरू करेंगी ना, तो उस थोड़े से भी आपकी ज़िंदगी में देखिएगा कि बहुत बरकत बढ़ जाएगी। तो आई कैन डायरेक्ट यू टुवर्ड्स सम अकाउंट्स, मतलब कि माशाल्लाह से वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं और मदर भी हैं, लेकिन माशाल्लाह से वो जो है जिस तरह जो है अपनी इबादत को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं ये नहीं कह रही कि अस आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब ये हमारा नेचर है कि हमारे ऊपर जो है वो हर वक्त शैतान हमें जो है ही वांट्स अस टू फॉरगेट थिंग्स एंड वो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा प्लान करें। तो जब इन चीज़ों को रोज़ के साथ से प्लान करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल सी द चेंज इन आवर लाइव्स इंशाल्लाह। आमीन। ओके, सो लेट्स एंड आवर सेशन नाउ एंड ऑनेस्टली मन तो नहीं है बिल्कुल, मन कर रहा है आपको सुनते रहें। और ये टॉपिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था एंड माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से पॉइंट्स हमें समझाए। सो नाउ वी हैव टू गो। नहीं, मुझे भी जैसा बहुत मज़ा आया। जी मेरे दिल में जो है सबसे बड़ी जो है तमन्ना ये है कि माशाल्लाह से आप अभी जिस स्टेज में हो लाइफ में, आप जो हो मतलब कि टेक एडवांटेज ऑफ दैट टाइम। अपने आप को अभी से जितना अच्छा डिसिप्लिन कर सकते हो करो, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द कमिंग इयर्स इंशाल्लाह। और निखत मैं तो आपको माशाल्लाह से देखती रहती हूँ, आप जो हो मतलब कि जिस तरह किताबें पढ़ती हो माशाल्लाह से बाकी बहनें भी पढ़ती होंगी, तो या इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सीकिंग नॉलेज, मुख्तलिफ तरह की जो है खाली दीनी नहीं दुनियावी भी तालीम हासिल करें, एंड inshallah it will help you in many years to come, and this is the best time, this is the best time to to make good habits and to gain as much knowledge as you can। मेरी गलतियों से सीखें। तो अब बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बरकत डाले, आप लोगों को दीन की और दुनिया की दोनों की कामयाबी दे इंशाल्लाह। आमीन जी, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। Okay, आमीन। jazakallahu khair for giving us your time and to all the sisters as well. Allah Hafiz, Assalamu alaikum, take care. Please stay वालेकुम safe. अस्सलाम।